آپ لوگوں کو سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پام سنڈے کی عبادت کے اندر آج شامل ہوئے ہیں اور خوب ہم نے جلوس نکالے ہیں، ڈالیاں بچھائی ہیں، کپڑے بچھائے ہیں اور خوب آج ایک نیا جو ہے خداوند کے حضور ہم نے اس کو سرا جلال دیا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بڑا ہی بابرکت بات ہے، اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا اس ساری چیز کو کہ جب یسوع مسیح نے آنا تھا اپنے علاقہ کے اندر، سہون کے اندر، یروشلم کے اندر، تو قوم بنی اسرائیل منتظر تھی ایک ایسے مسیحا کی، ایک ایسے خداوند کی جو انہیں چھڑائے، جو ان کو بچائے، اور وہ ایک جنگجو کی راہ دیکھ رہے تھے کہ داؤد کی نسل اور اصل سے جس طرح داؤد جنگیں کرنے والا تھا اور تلوار چلانے والا تھا، اسی طرح مسیحا بھی آئے گا اور انہیں حکومت روم سے جو ہے چھٹکارا دے گا، ان کو رہائی دے گا۔ لیکن یسوع مسیح در حقیقت لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو لڑائی سے چھڑانے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کو جو ہے صلح سے چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ صلح خاص کر وہ صلح تھی جو باپ کے ساتھ جدائی ہوئی تھی باغ عدن کے اندر گناہ کی، ان گناہوں کی جو ہے صلح کروانے جو باپ کے ساتھ ابتدا کے اندر ہوئی تھی، اس صلح کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ انسان اور خدا کی دوبارہ سے جو ہے صلح اور ملاپ کروانے کے لیے یسوع مسیح آئے تھے، پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی اسی گھڑی جو ہے یسوع مسیح ان کو چھڑائے گا۔ سو آئیے آج ہم دیکھیں کھجوروں کے اس تہوار کے اوپر، پام سنڈے کے اوپر آج کا جو پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم اس کو دیکھیں۔ متی رسول کی انجیل مقدس اور اس کا 21 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم خدا کے کلام مقدس کو دیکھیں گے۔ اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے پام سنڈے کے اوپر، یروشلم میں شاہانہ داخلہ یسوع مسیح کا۔ سو آئیے تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگہ کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سہون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھو تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، آج بھی بعض کلیسیوں میں ایسٹر سے پہلے کے تہوار کو خداوند یسوع کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کی یاد میں گرجا گھر میں کھجوروں کی ڈالیاں لے کر جلوس کی صورت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے متی کی تلاوت کی اور سنا کہ یروشلم میں اس کا شاہانہ داخلہ ہوتا ہے۔ شاہانہ داخلہ تو بادشاہوں کا ہوتا ہے، پر یہ بادشاہ ڈیفرنٹ بادشاہ تھا۔ یہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر نہیں آ رہا،
बल्कि शागिर्दों को उसने भेजा कि जाओ फलां जगह के ऊपर एक गधी का बच्चा वहां पर बदा होगा, वहां से जाकर तुम उसे ले आना। अगर कोई तुमसे पूछे तो उनसे कहना कि उस्ताद को इसकी जरूरत है और वो तुम्हें आने देंगे। सो ऐसा ही हुआ, वो गए और उन्होंने जब जाकर उस गधी के बच्चे को खोलना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम इसको क्यों खोलते हो? तो उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, और जरूरत इसलिए है क्योंकि उसने यरूशलेम के अंदर जाना है, और यरूशलेम के अंदर जब दाखिल होना है तो ये दाऊद बादशाह का शहर है, और दाऊद बादशाह यरूशलेम, यानी यरूशलेम वो शहर है जो खुदावंद का शहर है, इज़राइल का शहर है, और ये सलामती का शहर है। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने घोड़े के बजाय गधे को पसंद किया कि गधा जो सुलह की अलामत है, उसने उस गधे को पसंद किया। और बाइबल हमें फरमाती है कि वो गधी के बच्चे के ऊपर जब बैठा हुआ है तो फिर एक मार्फत जो ज़करिया नबी की मार्फत भी कलाम हमें मिलता है। ज़करिया 9 बाप और उसकी 9वीं आयत भी हमें मिलती है। मुस्तकबिल का जो बादशाह है, फ्यूचर का जो किंग है, उसके बारे हमें जो है यहाँ पर नबूवत मिलती है। और ये नबूवत भी अब यहाँ पर मत्ती रसूल के इंजील मुकद्दस का जो ये बयान है, यहाँ पर उसका हवाला दिया गया। आइए जरा इसके ऊपर भी गौर करें। ए बिनते सेहून, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। सुलह का मुजदा, सुलह का पैगाम, यरूशलेम के अंदर दाखिल होना बेसिकल सुलह का पैगाम सुनाना था। और यरूशलेम में जो है दाखिल होते ही उसने जो है खुदावंद के हजूर जब ये ठहराया हुआ था कि बनी नो इंसान और कौम बनी इस्राइल की जो नजात है वो उसके पास थी और वो उन्हें देना चाहता था, और नजात उनके पास थी और नजात को वो कबूल नहीं कर रहे थे। कफारा उनके पास था, वो कफारे को कबूल नहीं कर रहे थे। छुड़ाने वाला उनके पास था, पर वो छुड़ाने वाले को कबूल नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये बात पूरी होनी थी कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। इसलिए अब जब वो दाखिल हो रहा है तो वो बात फिर उन्हें याद दिलाना चाह रहा है कि निजात उसके हाथ में है, सुलह उसके पास है, और वो सुलह करवाने के लिए आ रहा है। और लोग जो है शाहाना उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं खजूर की डालियां लेने के लिए, दूसरे जैतून के पौधों की डालियां लेने के लिए, और अपने कपड़े, अपने रुमाल, अपने जो है वो इज्जत खुदा यीशु मसीह को देना चाह रहे थे। पर वो ये बात नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो समझ रहे थे कि शायद अब यीशु मसीह जाएगा तो रोमन हुकूमत के साथ वो जंग करेगा और जंग करके जो है उनको शिकस्त देगा। पर यीशु मसीह उन्हें शिकस्त देना नहीं चाहते थे। यीशु मसीह उन्हें सुलह का पैगाम देना चाहते थे, और सुलह का पैगाम यह था कि वो मुजदा जो ज़करिया नबी कहता वो पूरा हुआ। इस किताब मुकद्दस के मुताबिक निजात का ये पैगाम पूरा हुआ, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि वो गधे पर और जवान गधे पर सवार था, सुलह का पैगाम लेकर, निजात का पैगाम लेकर, और दाखिल होता है यरूशलेम के अंदर, और लोग उसे वेलकम कर रहे हैं। और साथ ही जब वो वेलकम कर रहे हैं तो वो होशना के नारे, लड़के नारे लगा रहे हैं, होशना के। होशना का मतलब है बहाल करने वाला, और ये यीशु मसीह था जो बहाल कर सकता था। और ये वो बहाली थी जो बागे अदन के अंदर आज शुरू हुई थी, जब खुदा और इंसान की जुदाई पैदा हो गई थी, और खुदा ने बागे अदन से गुनाह की वजह से जो है बनीनो इंसान को वहां से निकाल दिया। और आज फिर यरूशलेम के अंदर, सेहून के अंदर ये बात जो है नारों के साथ, जो है गूंज के साथ और डालियों के साथ, फतह, खजूर की डाली फतह का निशान भी है। जब भी पुराने आदमा के अंदर, और हम देखते हैं पुराने दौर के अंदर लोग फतह पाते थे तो खजूर की डालियां लहराते थे कि ये फतह कर कर आए हैं। और यहां पर फतह खुद बाखुद हो चुकी थी, क्योंकि सुलह का शहजादा जो है कोई तलवार लेकर नहीं बल्कि सुलह का पैगाम लेकर आया था। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, और
आलम बाला पर होशना के नारे, यानी जमीन के ऊपर भी बहाली और आसमानों के ऊपर भी बहाली का पैगाम जो है खुदा यीशु मसीह लेकर आया था। ये कोई आसान बात नहीं थी, ये बड़ा मुश्किल काम था। और मैं देख रहा था बाइबल मुकद्दस के अंदर के लोग उसे वेलकम कर रहे हैं। आज हमने भी वेलकम किया है, आज हमने भी डालियां लहराई हैं, आज हम भी खजूर की डालियां बड़ी खुशी के साथ उसकी पत्तियां पकड़े हुए, डालियां पकड़े हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि मेरा बादशाह यीशु मसीह इस दुनिया में आया है सुलह करवाने के लिए। वो आ चुका है, आज भी तेरे गुनाह की वजह से उससे दूर है। यीशु मसीह ने तमाम दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और ये फतह का शादियाना बजाया। और आज लड़के नारे लगा रहे हैं, होशना के नारे लगा रहे हैं, सहून की बेटी नारे लगा रही है, आप नारे लगा रहे हैं, क्योंकि बादशाहों का बादशाह और इलाहों का इलाह जो है सुलह करवाने के लिए यहां पर मौजूद हुआ है। मेरे अजीजों, तो आओ आज बादशाह को वेलकम कीजिए, यीशु को वेलकम कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर और कबूल कीजिए कि वो जो है सुलह बाप से हमारी करवा दे। गुनाह की वजह से हमारी जुदाई है, हमारी लड़ाई है। बाप हमारे गुनाह को देख नहीं सकता, लेकिन हम गुनाहगारों से उन जो है प्यार करता है। वो गुनाहगारों से तो प्यार करता है पर गुनाह से नफरत करता है। अजीजों, आओ गुनाहों को तर्क करें और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें, क्योंकि वो यरूशलेम में शाहाना दाखिले के साथ निजात लेकर हमारे लिए है, बनी इजराइल के लिए निजात लेकर है, कौमों उम्मतों के लिए निजात लेकर है। आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं, आओ आज यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल कर लो और अपने गुनाहों को तर्क करो और तौबा कर लो, क्योंकि यीशु मसीह फिर आने वाला है। एक फिर बड़ी आमद सानी होने वाली है, एक बड़ा इस्तकबाल होने वाला है और ये इस्तकबाल हवा के अंदर होगा, बादलों के ऊपर होगा। हम वहां पर अब उसको इस्तकबाल करने वाले। अब तो हम ये जमीनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डालियां लेकर, खजूरों की डालियां लेकर, जुलूस निकालकर गली गली हम जो है रोला डाल रहे कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह निजात दहिंदा आ गया है, लेकिन अब वो फिर आने वाला है। तो आओ तैयार हो जाओ, इससे पहले कि हम में से बतेरे इस दुनिया में रह जाएं, जहन्नम की आग में चले जाएं, इससे पहले कि हम इस दुनिया के ही रह जाएं, तो आओ तौबा कर लो, आओ यीशु मसीह को निजात दहिंदा अपना कबूल कर लो और गुनाहों को तर्क करके आज खुदा यीशु मसीह चाहता है कि हम बाप से सुलह कर लें, खुदा से सुलह कर लें। जो बागे अदन में हमारी आदम की वजह से जो दाई पैदा हुई, आज यीशु मसीह के वसीला से जो अब यीशु मसीह आदम बनकर आया है, इंसान बनकर आया, वो चाहता है कि हम बाप से सुलह कर लें। और जब वो गधे के ऊपर है तो आओ उसे अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों घरानों में वेलकम कीजिए, ताकि हम उसे जो है अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करके आज शादियाना बजाएं, आज नारे लगाएं, होशना के नारे लगाएं, बहाली के नारे लगाएं, क्योंकि मेरे खुदा यीशु मसीह ने जमीन के ऊपर भी बहाली इंसान को दे दी है और आलम बाला पर भी जो है इंसान को बहाली दे दी है। सो इस कलाम के वसीला से आज खजूरों का जो ये त्योहार है, खुदावंद इस कलाम के वसीला से और इस दिन के वसीला से खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा पास्टर मैनुएल के लिए, उनके चैनल के लिए। खुदावंद इस चैनल को और आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद आज के इस दिन के वसीला से आपको और आपके खानदानों घरानों को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए दुआ कीजिए और हम खुदा के हजूर इस सारे टीम के लिए, इस सारे इंतजाम के लिए, चर्च के लिए बरकत की दुआ करेंगे। खुदा कादर मुतलिक हम तेरी बारगाह अक़दस के अंदर तेरे बंदा के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, खानदानों घरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, चर्च के लिए, चर्च की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए, और इस सारे टीवी प्रोग्राम के वसीला से जब ऑनलाइन तेरा बंदा खिदमत गुजारी के अंदर बढ़ा है, तो खुदावंद इससे और इसके खानदान घराने को और इसकी सारी टीम को और इसके सारे प्रोग्राम को बड़ी बरकत दीजिए, देखने वालों को बरकत दीजिए। निजात के इस पैगाम को खुदावंद अपने लोगों को कबूल करने का फजल दीजिए। जिन्होंने अभी तक तुझे अपना हकीकी निजात दहिंदा नहीं कबूल किया है, उन्हें भी तौफीक दे कि वो तुझे यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा कबूल करें और तेरे हजूर नारे मारें और तेरी शुक्रगुजारी करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।